टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस विल बी डिस्कस। हम लोग आज क्या करते हैं भाई, डिस्कस करेंगे किस पे, जो इम्परेटिव सेंटेंस का लास्ट बचा हुआ है, ठीक है। बट बिफोर दिस क्लास वी हैव टॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस जस्ट बिकॉज like when a sentence start with the let, when a sentence start let us, when a sentence start with let plus subject, when a sentence start with let plus intransitive verb. But today the last topic related to imperative sentence, when a sentence, everybody must take down it, when a sentence starts with let and intransitive verb, then when a sentence starts with let and intransitive verb, then listen carefully, not to talk please. When a sentence starts with let and intransitive, I know everybody is much familiar with intransitive verbs, the verb that has not any kinds of objects. This type of verb is known as intransitive verb. For active form, main verb plus other word. Main verb plus other word. This is why it is considered intransitive verb. Are you got my point? समझ रहे हो ना? Main verb plus other words. It means this verb is considered intransitive verb. But when a verb has any object, then it is considered transitive verb. Okay? Then passive form. And when a sentence starts with let and infinitive verb, then passive form starts with you are ordered or you are advised plus 2 plus V1 plus other word. You must remember all the time in passive voice always use third form of the verb. अब सभी को याद रखना है कि हमेशा क्या होता है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आता है. एंड एवरीबडी प्रोनाउंस इट एडवाइज, नॉट एडवाइज, बट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट एडवाइज. यू नो वट, इट इज़ द वर्ब and the verb that is going to be pronounced advice, it is that is a noun. जिसको हम एडवाइस बोलते हैं वो नाउन होता है, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं वो एडवाइज होता है. क्लियर? सम एग्जाम्पल्स come here. Some examples come here. You can see here, आप यहाँ देख सकते हो, this verb has not any object. After a verb, any kind of phrase, any kind of other words is implied here, so that you can apply this type of formula while making change active to passive voice. Then you can take it down here. You are ordered or you are advised plus to come here. Before going to changing into passive voice, you must remember all the rules related to passive voice. Then it will be easy using. अगर आपको आसान तभी लगेगा जब आपको सारा कुछ याद होना चाहिए. ठीक है? More examples. Go there. You stand up, Mister. Stand up. What will be passive voice of this sentence? Speak loudly and frankly. You are advised to go there. Never say go there. Pronounce it always clearly. Go there.
not say there. Because you are here to learn English, that's why it's a very important. Whatever you are going to say must be correct. Sit down. Take it down fastly. After that, I'll teach about more different types of passive voice, which is based on verb, gerund, tense, and many more. Is it running period or not? एक्चुअली मैंने इसको कुछ किया नहीं है. गॉट इट. चलो, नाइस. डू आई क्लीन इट? साफ कर दूँ क्या इसको? बोलो. एवरीबडी मस्ट गॉट इट. ये सब समझ गया होगा कि क्या बताया गया है. आपको याद हमेशा रखना है कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट बट बिफोर दी टेंस, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्ट्स विद लेट. आपने इससे पहले बहुत सारा वाक्य पढ़ा जो लेट से ही स्टार्ट होता है, बट सबका कंडीशन क्या है? अलग अलग है. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइसेस. So passive voice based on clause. Now we will talk about passive voice based on clause. And before this, everybody must be familiar with clause. What is clause? How many kinds of clause? How many types of clause? What is the main components of clause? And what is the major function of clause? Everybody must be taught about this topic before. इससे पहले सब कुछ आपको पढ़ाया गया हुआ है. बेशक आपको याद नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए. ठीक है. रिफत, stand up. How many types of clause according to function? 3. You. Which one? Simple, complex. It's not a type about. Okay. I'm talking about the functional, not talking about the structural. Whatever you are letting me know, that is structural, not a functional. So you have to tell the functional types of clauses. Principal, subordinate, subordinate. Take your seat. So everybody must listen to these types of clauses. The first one is that principal clause, second one is that coordinating clause, and third one is that subordinating clause. You know what subordinate clause has been also divided into 3 types: noun clause, adverb clause, and adjective clause. Adjective clause is also known as a relative clause. Before this time I have already taught about all these things. Okay, so let's move on. Clauses. Active form. Here is written main clause and subordinate clause. You know what subordinate clause is? Always start with different types of conjunction, like that, when, as soon as, the moment, until, unless, if not, as long as. Different types of words are mentioning before subordinate clause. Passive form की बात अगर करें हम तो it is plus, एक्चुअली लिखेंगे it प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. देखो यहाँ समझना होगा कि मैंने ऊपर वाक्य नहीं लिखा, तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो. इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर सो कंफ्यूज
बिफोर अबाउट दिस सेंटेंस आई हैव नॉट रिटन एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट्स वाई यू हैव लिटिल कन्फ्यूजन। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ने कैसे लिखा है, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ लिखा पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। लोग कहते हैं कि वह ईमानदार है, लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है, लोग कहते हैं कि वो क्या है, ईमानदार है। बोलिएगा मेरे साथ, ठीक है। ये आपका कौन सा क्लॉज है भाई, तो मेन क्लॉज है। क्या है ये, मेन क्लॉज। ये आपका कौन सा क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन क्लॉज है, गॉट इट, समझ रहे बातों को। ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है। तो आपको एक बात हमेशा याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था जब टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था, तो मैंने बताया था कि कभी भी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे पीपल यूज नहीं होता है, पीपल यूज नहीं होगा। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, ये इट को लिखते हैं, ठीक है। इट लिख दिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाक्य पूरा के पूरा, यानी कि मेन क्लॉज आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलेगा ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, बोलना चाहिए आप लोगों को। ये किस टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हो तो उसका पैसिव वॉइस बना देना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, इज एम आर। क्या आता है, इज एम आर। तो क्या हो जाएगा, इट इज। इसका V3 क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। और जो रेस्ट पार्ट हमारे पास बचा हुआ उसको हम जस्ट का तस लिख देंगे, एज इट इज। You have no need to change anything. It means it is a passive voice and it is an active voice. But I want everybody must change into passive voice, because in this sentence there are two subjects, people and he. People and he. So I want only one subject is mentioning here. तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि दोनों देखिएगा, तो यहाँ एक अलग सब्जेक्ट है, यहाँ एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि दोनों वाक्यों को मिलाकर कोई एक ही सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उस तरीक़ा से भी हम बना सकते हैं, ध्यान से समझना। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पैसिव का। कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा सा सब्र करो, समझ में आ जाएगा पैसिव फॉर्म। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, इसी वाक्य का देखो यहाँ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट को हमने क्या किया, पूरे वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। और इधर का जो पार्ट होगा ना वो डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इधर का जो पार्ट होगा वो कैसे होगा, टेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लिखो तो जल्दी से इसको, टेक इट डाउन फास्टली। देखो एक दो एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूँगा। हालांकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, सो थोड़ा मेरे लेक्चर में दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि मुझे क्लास में थोड़ा सा चुप रहना भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा देख लो फिर लिखते रहना। हमने लिखा यहाँ पे कि सम पीपल बिलीव्ड दैट she was good। कुछ लोग कहते थे कि वो अच्छी थी, कुछ लोग कहते थे कि वो अच्छी थी। अब देखो समझना, आपको एक तरीका तो समझ में आ गया है कि हम क्या करेंगे भाई, सम पीपल हो, दे हो, वहाँ पे कुछ भी हो ईटी लगेगा, ठीक है। इवन आज भी रहेगा फिर भी हम ईटी लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सम पीपल की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, इट। क्या लिख देंगे। अब ध्यान देना कि सम पीपल बिलीव्ड, इट मीन्स it is of past indefinite tense. You know what past indefinite tense in passive voice you have to use was and were। तो यहाँ क्या हो जाएगा, was, it was, believed। और हम क्या करेंगे, जो रेस्ट पार्ट लिखा हुआ उसी को लिख देना है, that she was good। बट इसको दूसरे तरीक़ा से हमें बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे समझो। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीक़ा से बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे एक ये भी सब्जेक्ट है और एक ये भी सब्जेक्ट है। तो अब हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है।
कि पूरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है आपका, सी वॉज गुड है, इसी को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। सी वॉज बिलीव्ड, सी वॉज बिलीव्ड टू बी गुड, करेक्ट, ये हो गया पैसिव वॉइस। और इस टाइप का वाक्य, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर मेंशनिंग मोस्टली इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। लिखो थोड़ा जल्दी लिखना। इधर सारे बच्चे उतार लिए हैं। तो हम क्या करेंगे नहीं, इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हमारा दूर नहीं होगा। इस चीज़ को रब कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, बोलो गर्ल्स लोग, मिटा दिया जाए। Some more examples. They say that Mohan has honesty. वे लोग कहते हैं कि मोहन के अंदर क्या है, ईमानदारी है। Try to get my words attentively, केयरफुल्ली। आप बिल्कुल जो है ना सावधानी से सुनो, बिल्कुल सावधान होके, तभी समझ में आएगा। आप यहाँ देखेंगे बच्चे, तो ये जो आपका क्या है, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है, क्या है, और ये क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपका क्या है, मेन क्लॉज, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप देखते हैं कि मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है कि नहीं। तो भाई हमने क्या बताया कि आप क्या कर सकते हो, एक तो ईट पर आधारित बना सकते हो, दूसरा क्या, एक वाक्य को या दोनों वाक्यों को मिलाकर, एक ही सब्जेक्ट मिलाकर हम बना सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ दिए लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इट। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या लिखाएगा, इज लिखाएगा कि वॉज लिखाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या लिखाएगा, इज की और लिखाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज सेड, इट इज सेड। और जो लिखा है वही हमें लिख देना, पैसिव वॉइस ये बन गया, मोहन हैज ऑनेस्टी, मोहन हैज ऑनेस्टी, राइट। ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला सबको समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। सब बना सकता है ना। तो ये वाला सबको आता है, लेकिन हमें सिखाना है दूसरा भी है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो ना। हम क्या करेंगे भाई, दोनों देखो, दोनों क्लॉजेज का जो दो सब्जेक्ट है उसको एक ही सब्जेक्ट मिला के बनाएंगे, समझ गया। तो ये आ जाए क्या, यहाँ पे मोहन, मोहन इज सेड जी, मोहन इज सेड, मोहन इज सेड। अब ध्यान से सुनना, मोहन इज सेड, यहाँ तक तो समझ में आया कि इट की जगह हमने क्या किया, मोहन को उठा लिया, पूरे वाक्य का एक ही सब्जेक्ट बनाया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कोई अधिकार को दिखाया जा रहा है, किसी चीज़ का होना है जिस पे हम हक, पोजीशन दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, हैज़ तो लगा नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे, टू, और टू के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, हैव ऑनेस्टी, ऐसे वॉइस। तो इस तरीक़ा से ही बना सकते हैं आप, ठीक है। एक और है, जैसे आपने लिखा, सी थिंक्स दैट मुस्कान प्लेज वेल। उसे लगता है या उसे वो सोचती है कि मुस्कान अच्छा खेलती है। अब ध्यान से समझना, इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका तो सारे बच्चे समझ गए कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, ठीक है। ध्यान सुनो, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के तौर पे कुछ भी आएगा, लेकिन जैसे ही इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर ईट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ ईट लिख दिया। उसके बाद क्या करना, अकॉर्डिंग टू टेंस, ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल बी चेंज्ड, अकॉर्डिंग टू टेंस इट विल बी चेंज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज़ थॉट, क्या हो जाएगा, इट इज़ थॉट। टॉक टू मी, मेरे साथ बात करो, ठीक है। सारा कुछ क्लास में याद हो जाएगा, समझ गया। कुछ भी घर पे जाके याद नहीं करना। अगर क्लास में कॉन्शियस रहेगा, बी कॉन्शियस वाइल टीचिंग वाइल स्टडिंग, देन एवरीथिंग मस्ट बी रिमेंबर ऑज वेल एज, सब कुछ अपने आप याद हो जाता है।
ठीक है, घर पे जाने के बाद याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग बाई गोइंग टू होम, कोई ज़रूरत नहीं घर पे जाके याद करने का, ध्यान से समझो। और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, बाकी क्या चाहिए, रट्टू थोड़ी बनना है हमें, ठीक है। ये पूरा के पूरा क्या माइंड वर्क है, दिस इज नॉट फॉर मगिंग अप, ये रटने का चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द यूज ऑफ योर ब्रेन, वॉट एवर यू आर गोइंग टू लर्न बाय द टीचर, ठीक है, अब जो सीखने जा रहे टीचर्स के द्वारा। इट इज़ थॉट, अब जो लिखा है वही लिख देंगे हम। मुस्कान प्लेज वेल, ये तो आपका पैसिव वॉइस बन गया। इस टाइप का तो सबको बनाने आ गया, राइट, सब बना लेगा, गॉट माई पॉइंट, सब बना लेगा ना। बट एवरीवन हैज़ हैड टू चेंज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हर एक आदमी को चेक करना है, इस हिसाब से चेंज करना है, इस हिसाब से, तभी हम समझेंगे कि आपको बनाना है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मुस्कान है और यहाँ पे सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है, थर्ड पर्सन इसके बाद मुझे पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस मुस्कान को ही क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बना लेंगे, लिख दिए मुस्कान। अब क्या करेंगे हम, इसको भूलना नहीं हमें, इज थॉट। और एक बात हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चे, कि जब भी कोई वर्ब आएगा, उस वर्ब के तुरंत बाद कोई वर्ब आएगा, तो आप हमको हमेशा ध्यान रखना, या तो वी फॉर्म होगा या फिर वो इन्फिनिटिव में होगा। इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थॉट टू प्ले वेल। उतार लो जल्दी से, जल्दी उतारो। आए क्या बोल, देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन आपने किया है कि सर यहाँ पे टू बी क्यों हुआ है। तो आप यहाँ समझ जाइए बच्चे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी व्यक्ति का जो है ना स्टेट बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है, वो अच्छी थी, ठीक है। तो अच्छी थी होना क्या, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी, नॉट शोइंग द एनी काइंड्स ऑफ एक्शन, बट हियर इज शोइंग द एक्शन। यहाँ काम दिखाया जा रहा है, यहाँ पे काम दिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, V3 के बाद 2 + V1 लगाएंगे। लिखो जल्दी से, जल्दी उतारिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बोलो। एवरीबडी मस्ट ट्राई द लेवल बेस्ट टू गेट द टीचर्स। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश को, जो टीचर पढ़ाए उसको समझे, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार में समझ में ना, दूसरी बार कोशिश करेंगे, तीसरी बार कोशिश करेंगे, लेकिन अंततः जो आदमी हिम्मत करता है, मेहनत करता है, उसको समझ में आ जाता है, ठीक है। और देखो पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू CBSE, पैसिव वॉइस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, but it is very important to know, every student those who are going to prepare for class 10th 9th, without knowing passive voice, without knowing narration, without knowing tense, without knowing modals, you can't write proper, आप लिख नहीं सकते सही से, because you know what, every story, every novels, every types of poetry, every types of novels, every types of magazines, newspapers has been written with the help of passive voice। आप पढ़िएगा अपने किताब में, देखिएगा पैसिव वॉइस से कितना यूज होगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको देख जाएगा V3 समझने में पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, सारे बच्चे उतार लिए, तो सबको समझ में आ गया होगा लगभग। चलो एक दो और क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा सा और ट्रिकी टाइप का। नो नीड टू टॉक, बी अटेंटिव, बात नहीं करो। नेक्स्ट है, जैसे हमने यहाँ लिखा, पीपल सेड दैट they were good friends. People said that they were good friends. लोग कहते थे कि वे लोग अच्छे दोस्त थे, लोग कहते थे कि वे लोग अच्छे दोस्त थे। और आपको क्या करना, पैसिव वॉइस में बदलना दोनों तरीक़ा से, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, दोनों तरीक़ा से बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, कौन बना सकता है, Who is able to change into passive voice this sentence? Stand up. कौन बना सकता है, तुम आ जाओ, आइए।
at least you can try to solve these questions. It's the piece of cake. ये समझ लो कि बहुत आसान चीज़ है. बगल में लिख दो पैसिव वॉइस. चलो तो ऐसा करें कि थोड़ा सा इनके लिए क्लैप कर दे. ठीक है, सही बनाया बच्चा. ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइप मुझे लगता है कि सब समझ चुका है ना. फर्स्ट टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस हैज़ गॉट एवरीबडी, राइट. सब समझ चुका है. बट एवरीबडी मस्ट ट्राई टू चेंज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इनटू सेकेंड टाइप. जो मैंने पढ़ाया उस दूसरे टाइप में बदलना है सबको. ठीक है, तो हम कैसे बदलेंगे? कौन बना सकता है इसको दूसरे टाइप से? आ जाओ, कम आउटसाइड. क्लास में जब भी कोई बेहतर करे उसको क्या करना चाहिए? अपलॉज करना चाहिए. ठीक है, उसको तेरी प्रशंसा करना चाहिए, ताली बजा देना चाहिए, ताकि तुम्हें ही मौका मिलेगा. एक बनाता है तो थोड़ा सा आप भी कॉन्शियस होकर सीखिए कि कैसे बना रहा है ये. जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आराम आराम से बनाओ. एक बार और कोशिश करो, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 कॉमन एरर इन योर सेंटेंस. एटलीस्ट रीड योर सेंटेंस वंस. एक बार कोशिश करो आप. चलो, वेरी नाइस, क्लैप. तो देखिए दोनों टाइप से हम लोगों को बनाने आ गया. ठीक है, जिससे नहीं बनता वो क्या करेगा? कोशिश करेगा, बैठ के मुंह नहीं देखेगा. ठीक है, everyone has had to try their level best to change into passive voice all types of sentences. हर एक प्रकार का बनाने की कोशिश करना है. गलती होगा तो होगा, क्या जाता है. देखिए ये भी हो गया और ये भी से दोनों क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस हो गया. ठीक है, बहुत लिटल एरर था यहाँ पे, क्योंकि दे के साथ हमेशा वर लगता है, वर्स नहीं लगता है. ठीक है, अब एक और हम आपको देते हैं, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा. समवन सेज, कोई कहते हैं कि आई हैव डन माई जॉब. कोई कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है. ठीक है, अब इसको क्या करना है? पैसिव वॉइस में बदलना है. कैन यू चेंज इट और नॉट? नो. वाई? कम आउट. You have to develop up your confidence in your class. अपने क्लास में क्या करना है? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है. वेरी नाइस, क्लैप. डू क्लैप. दूसरे तरीक़ा से बनाओ इफ़ पॉसिबल. बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट. कोशिश करो यार, बन जाएगा. नो, यू आर गोइंग टू रॉन्ग वे. टेक योर सीट, गो टेक योर सीट. फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज टोटली करेक्ट, बट एवरीवन हैज़ टू ट्राई द लेवल बेस्ड चेंज इनटू सेकेंड टाइप. पहला वाला तो सब बना लेगा, लोचा नहीं है, क्योंकि दूसरा में हम छेड़ते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, जो लिखा वही लिखते हैं. दूसरा बनाना रहेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों वाक्य का जो सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं भाई? दोनों क्लॉजेस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसी को हम सब्जेक्ट यहाँ बना लेंगे. आई. क्या बना लिए? आई एम सेड. आई एम सेड. अब आपको ध्यान देना होगा बच्चा, यहाँ पे क्या है? हैव है. क्या है? हैव है. अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा है ऐसा, तो हैव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू हैव. अब आपको पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा? टू हैव होगा या टू हैव बीन डन होगा? बताओ क्या होगा?
बताओ, हैव बीन डन माई जॉब होगा कि सीधे हैव जॉब होगा, बताओ। हाँ, आई एम सेड टू हैव बीन डन माई जॉब। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे बच्चे इस टाइप का वाक्य समझ गए हैं। थोड़ी सी समस्याएं होंगी, ऐसा नहीं कि इतना आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समस्या थोड़ा सा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फिर आपको बनाने आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग। 5 मिनट और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर प्रैक्टिसिंग 1 और 2 क्वेश्चंस विल बी डन। 1 और 2 क्वेश्चन और किया जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। देखो, हर एक आदमी को कोशिश करना चाहिए। ठीक है, कोई आदमी पैदाइशी महान नहीं होता है। ठीक है, नो बडी इज़ ग्रेट बाय बर्थ, एवरीबडी इज ग्रेट बाय हिज और हर डिड्स। हर एक इंसान अपने कर्मों से महान होता है, जन्मों से नहीं। ठीक है, मैं कुछ बच्चों को इसमें देख रहा हूँ, बोलता ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करता है, छाप पड़ा है यार, आज ऐसे काम नहीं चलेगा ना। यू हैव टू डू इट, तुम्हें भी यह करना है। ठीक है, बिकॉज यू आर पेइंग सम अमाउंट, देन यू आर अलाउड टू एंटर दिस क्लास। सो यू मस्ट कीप योर माइंड दैट विदाउट लूजिंग एनीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। बिना कुछ खोए कुछ पाता नहीं इंसान ना। तो आपको क्या करना चाहिए, पैसा भी खर्च कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, कम से कम कोशिश तो करो, सीख सकते हो। क्या सीख सकते हैं कि नहीं? चलो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, they said that he had enough money. He had enough money. हमने लिख दिया कि nobody believed that Abdul has a lot of knowledge. सारे बच्चे कोशिश करें, बनाइए इसको। ओए मिस्टर, यू कैन डू इट, तुम भी कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। These are the last question for today. So everybody must try their level best to solve these questions, do these questions. These are the last questions and you have to solve it, you have to do it. If you have understood everything that I have taught you, बना लिए? हरी अप बॉयज, हरी अप। Hurry up please, because you know what, time is a precious things. So everybody must pay the value of time. Within a 1 minute you have to solve. Within a 1 minute you have to do it. You have to change it passive voice. Are you all done? सबका हो गया? सबका हो गया ना? सो एवरीबडी मस्ट मैच योर आंसर। अपना अपना आंसर चेक करेंगे। एवरीबडी मस्ट देयर आंसर्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दे सेड दैट ही हैड एनफ मनी। बोथ क्लॉजेज आर रिटन इन
पास्ट टेंस, दोनों किस में लिखा गया है? पास्ट टेंस में। सो लिखेंगे इट वॉज सेड डैट एज इट इज़ इट वॉज सेड डैट ही हैड एनफ मनी। एज इट इज़ का मतलब होता है कि जैसो का तैसा, ठीक है, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो इट वॉज सेड डैट ही हैड एनफ मनी, राइट। दिस टाइप ऑफ पैसिव वॉइस गॉट एवरीवन, सब समझ गया है मुझे लग रहा है। ऐसा तो सब बना लेगा, लेकिन कोशिश नहीं करता सब, ये गलत है, इट्स रॉन्ग थिंग्स। इफ़ यू गेट वेल इट मीन्स यू आर गोइंग टू ट्राई एंड डूइंग योर बेस्ट, आप कोशिश कर रहे हैं, आप बेहतर कर रहे हैं। बट व्हेन द टीचर्स calls you to solve this question on the board, then you are totally refused। क्यों मना करते हो बताओ? कॉन्फिडेंस कोई बाज़ार में थोड़ी मिलता है, कॉन्फिडेंस इंसान को अपने आप बढ़ाना पड़ता है, समझा कि नहीं? हाँ। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने बताया था कि जब दो क्लॉज होगा, व्हेन टू क्लॉज इन एक्टिव वॉइस, देन द सेकेंड क्लॉज दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज will be applied as a subject of whole sentence। अब पूरे वाक्य का एक सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसको? तो इसको बना सकते हैं he was said। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अब आपको पता है कि भाई जब ऐसा लिखा जाएगा, इसके बाद मुझे कुछ और वो भी मेंशन करना है, तो भाई डैट तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ इसके बदले क्या आ जाता है? टू आ जाता है। ये पास्ट में था तो हैड था, लेकिन पास्ट में था तो हैड था, लेकिन इससे पहले पास्ट मेंशनिंग हो चुका है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसको हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव एनफ मनी। समझ में आया पैसिव वॉइस? एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई अधिकार दिखाने का बात हो रहा है। वहाँ पे हेल्पिंग वॉज वर इज एम आर था ना, वहाँ पे वर्ब टू बी था, यहाँ पे वर्ब टू हैव है ना। हैड इज अ वर्ब टू हैव, ठीक है, बट इज एम आर वॉज वर शैल बी विल बी, इट्स ऑल अबाउट वर्ब टू बी। एंड टू बी shows द स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पोजिशन ऑफ एनी थिंग्स एनीबडी। टू बी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का स्थिति बताना। बट टू हैव मीन्स क्या होगा? कि किसी भी चीज़ पे हक दिखाना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ज्ञान है, आई हैव नॉलेज, तो मेरे ज्ञान पे हक किसका होगा? मेरा होगा, आपका नहीं होगा। फिलहाल हम आपको देंगे तब उस पर हक होगा आपका। मैं बोला कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स, तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है? उस किताब पे हक दिखाने का बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि नोबडी बिलीव्ड, कोई विश्वास नहीं करता है कि अब्दुल के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, इट वॉज नॉट बिलीव्ड, इट वॉज नॉट बिलीव्ड। नो टॉक प्लीज, वाई टॉकिंग, वाई टॉकिंग? When I ask some question to solve, then you are failed। जब क्वेश्चन करने के लिए बोलते तो फेल हो जाता है। That Abdul has a lot of knowledge। ये तो सबको समझ में आ गया है, समझ गया ना सब। बट नेक्स्ट टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपेरिजन टू दिस वन। इसके बदले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब बना लेगा, ठीक है। और इस टाइप का जो वाक्य न्यूज़पेपर नहीं लिखता है, अभी जो मैं बताऊंगा वो न्यूज़पेपर लिखेगा, और वो लिखेगा तो आप समझिएगा नहीं, तो कहेगा आपको अंग्रेजी आता नहीं है, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, वो टाइप का आप लिखेगा तो अच्छे से बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम अब्दुल को यहाँ क्या बना दिए? पूरे दोनों सेंटेंस के दोनों क्लॉज को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो वेन सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट्स इज अप्लाइड फॉर इंटायर क्लॉजेज, दोनों क्लॉजेज के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब्दुल वॉज नॉट बिलीव्ड टू हैव लॉट ऑफ नॉलेज। चलो, तो इट मीन्स सारे बच्चे समझ गए हैं, लेकिन कुछ डाउट अभी भी होगा, क्योंकि मैंने आपको एक्शन बेस बहुत कम पूछा, ठीक है। एक्शन बेस पूछूंगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे भाई? रिवाइज करके आएंगे, डू रिवाइज, डू रिवाइज। सारे बच्चे क्या करेंगे? रिवाइज कर आएंगे, ठीक है। आज के लिए यही है, चलो।
तो सारे बच्चे क्या करेंगे, मस्ट रिवाइज ऑल दिस थिंग्स दोज हु आर गोइंग टू बी डिस्कस इन द क्लास। सारे बच्चे जो क्लास में डिस्कस किया जा रहा है उसको आप लोग क्या करेंगे भाई, बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है।